یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو 5 سال کی محنت کے بعد ایک خاتون کے دھکے کھانے، دفاتر میں جانے اور یہ ایک عجیب کردار کشی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں یہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ وہ کیا حالات تھے کہ وہ مجبور ہوئی کہ اپنی شکایت لے کر وہاں گئی ہیں۔ یہ کارپوریٹ کلچر کی ایک ڈارک سائڈ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ خواتین کو کس طرح پپٹ سمجھا جاتا ہے، کس طرح کھلونا سمجھا جاتا ہے۔ ان کو نہ صرف اپنے آفس میں میٹنگز کے بہانے بلاتے تھے بلکہ لنچ، ڈنر اور مختلف جگہوں پر گھومنے پھرنے کی آفرز بھی کرتے تھے۔ ان کی باڈی کے بارے میں بھی جو ہے وہ مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے جو خاتون کو ناگوار گزرتی تھی، اور دوسری خواتین کی مثالیں بھی دیتے تھے کہ میں فلاں خاتون کو بلاتا ہوں تو رات کے 1 بجے بھی وہ آ جاتی ہیں، یا ان کو لے کے میں کہیں بھی لے کے جا سکتا ہوں۔ السلام علیکم، میں شاہد حسین ہوں اور میرے ساتھ ہیں سینئر صحافی اصغر عمر صاحب۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے خواتین کو ہراساں کرنے سے متعلق صوبائی محتسب کی جانب سے ایک بڑا فیصلہ جاری کیا گیا ہے۔ یہ بڑا فیصلہ کوئی معمولی یا عام چھوٹے ادارے کا نہیں ہے بلکہ کے الیکٹرک کے CEO مونس الوی کے خلاف جرم ثابت ہونے کے بعد جاری کیا گیا ہے، جس میں قرار دیا گیا ہے کہ مونس الوی نے نہ صرف خاتون کو ہراساں کیا بلکہ یہ ڈارک ویب کی ایک کارپوریٹ سیکٹر کی ایک اعلیٰ مثال بھی اس کو قرار دیا گیا ہے اپنے فیصلے میں۔ محتسب نے جو فیصلے میں قرار دیا ہے کہ اس میں CEO کے الیکٹرک مونس الوی کو عہدے سے نہ صرف ہٹایا جائے بلکہ 25 لاکھ روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر وہ جرمانے کی رقم ادا نہیں کرتے تو ان کا پاسپورٹ اور ان کے شناختی کارڈ بلاک کیا جائے اور ان کی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد بھی ضبط کی جائے۔ یہ ایک بہت بڑا حکم نامہ ہے جس میں نہ صرف خواتین جو مختلف سرکاری، پرائیویٹ اور مختلف سیکٹرز میں جابز کرتی ہیں، کام کرتی ہیں، جہاں ان کو ہراساں کیا جاتا ہے، ان کے لیے ایک بڑا فیصلہ ہے کہ کسی کو بھی اس طرح کے اگر مسئلے کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی کسی بھی ادارے کے خلاف، کسی شخص کے خلاف جو ہے جا سکتی ہیں۔ اس میں یہ ملزم جس کو باقاعدہ فیصلے میں ملزم قرار دیا گیا ہے مونس الوی کو، ملزم خاتون سے کیا کہتے تھے اور خاتون کو کن مشکلات کا سامنا کرنا ہوتا تھا، وہ ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے شیئر کرتے ہیں۔ اصغر بھی ایک بہت بڑا فیصلہ ہے جس میں کہ الیکٹرک کے CEO جو کہ ایک بڑا طاقتور اور ایک بہت بڑا ادارہ سمجھا جاتا ہے کہ الیکٹرک کا، جس میں لوگ یہ بھی رائے رکھتے ہیں کہ کوئی عدالت تو دور کی بات ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے پر بھی کہ الیکٹرک عمل درآمد نہیں کرتا، تو CEO کے الیکٹرک کے اوپر خاتون کو ہراساں کرنے کا جرم ثابت ہو گیا ہے۔ تو خاتون نے کیا کہا، کس طرح تنگی اور پریشانی کا سامنا ہوتا تھا خاتون کو کے الیکٹرک میں، اور مونس الوی صاحب کے کردار کے بارے میں کیا بات کی گئی ہے؟ یہ دیکھیں، ابھی اسے ہم یہاں پر 2 افراد کے درمیان اس کیس کو دیکھنے کا کہ جو شکایت کنندہ تھی، کیونکہ وہ بھی کے الیکٹرک میں کام کرتی تھی مارکیٹنگ مینیجر کے طور پر، اور یہ CEO کے الیکٹرک تھے۔ ان کے متعلق ایک فیصلہ اب آیا ہے کہ ورک پلیس پر جو ہراسانی کا کیس ہے اس میں ایک کو ملزم قرار دیا گیا ہے، لیکن ہم یہاں پر جو گفتگو کریں گے وہ یہ کریں گے کہ یہ جو فیصلہ ہے یہ خواتین کے حقوق کے لیے کتنا لازمی ہے اور کتنا یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے جو 5 سال کی محنت کے بعد ایک خاتون کے دھکے کھانے، دفاتر میں جانے اور یہ ایک عجیب کردار کشی کا جو معاملہ ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ جو ہوا ہے اس کے بارے میں یہ انتہائی اہمیت رکھتا ہے۔ حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ اس فیصلے کے خلاف اپیل ہوں گی، فیصلے ہوں گے، سسپینڈ بھی ہو سکتا ہے، واپس بھی ہو سکتا ہے، لیکن آج ایک یہ بنیاد رکھی گئی ہے۔ اس سے پہلے بھی یہاں پر بہت سارے کیسز ہوئے تھے لیکن میڈیا انہیں توجہ نہیں دیتا تھا، عام خواتین ہوتی تھیں، لیکن یہ ایک بڑے ادارے کے CEO کے خلاف یہ فیصلہ آیا تو میڈیا نے بھی اس پہ توجہ دی ہے، اور یہاں پر اس کو اب ہر جگہ اس پر گفتگو کی جا رہی ہے کہ یہ کیا ہوا ہے اور کیسے ہوا ہے۔ ایک طرف کے یہ الیکٹرک کے سربراہ ہیں مونس الوی صاحب، اور دوسری طرف ہارورڈ اور کیمبرج کی کوالیفائڈ خاتون ہیں جو BBC اور ورلڈ بینک میں بھی کام کر چکی ہیں، اور وہ یورپ اور مغرب کے وہ اسٹینڈرڈ بھی جانتی ہیں کہ جس طریقے سے کام کیا جاتا ہے۔ وہ کیا حالات تھے کہ وہ مجبور ہوئی کہ اپنی شکایت لے کر وہاں گئی ہیں محتسب کے پاس، اور اب محتسب کی ایک پاور بھی، طاقت بھی سمجھ آئی ہے خواتین کو کہ اگر کوئی انہیں ہراساں کریں تو ان کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے۔ لیکن ابھی بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک اسپیشل اسی کام کے لیے ایک محتسب بنائے گئے ہیں، لیکن اس میں بھی 5 سال کا وقت لگا ہے خواتین کو اپنے کسی کنکلوژن پہ جانے پہ یا کسی ایک مرحلے کو سے گزر کر وہ جو پہنچی ہیں، تو یہ 5 سال کی مدت لگی ہے۔ تو ابھی تک یہ ثابت ہوا کہ ہمارے معاشرے میں خواتین کا باہر نکل کر کام کرنا بہت مشکل ہے۔ جیسا کہ محتسب نے اپنے فیصلے میں یہ آبزرو کیا کہ یہ کارپوریٹ کلچر کی ایک ڈارک سائڈ ہے جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ خواتین کو کس طرح پپٹ سمجھا جاتا ہے، کس طرح کھلونا سمجھا جاتا ہے، یا ان سے کس طریقے سے بیہیو کیا جاتا ہے۔ ابھی تک ہمارے معاشرے میں یا ادارے میں خواتین کو وہ اہمیت اور عزت نہیں دی گئی ہے جس کی وہ مستحق ہیں۔
अच्छा, इसमें जो खास तौर पर जो इल्ज़ाम था या जो इल्ज़ाम लगाया गया, जो कोर्ट में साबित भी हुआ है मुझ के सामने, इल्ज़ाम ये था जी उनको ना सिर्फ अपने ऑफिस में मीटिंग्स के बहाने बुलाते थे, बल्कि लंच, डिनर और मुख्तलिफ जगहों पर घूमने फिरने की ऑफर्स भी करते थे, और इसी तरह उनकी बॉडी के बारे में भी जो है वो मुख्तलिफ किस्म की बातें करते थे जो खातून को नागवार गुजरती थी, और दूसरी खवातीन की मिसालें भी देते थे कि जी मैं फ़लाँ खातून को बुलाता हूँ तो रात के 1 बजे भी वो आ जाती हैं, या उनको लेके मैं कहीं भी लेके जा सकता हूँ। इनको बुलाया जाता था मीटिंग्स के बहाने में, और यहाँ तक भी उस दरख्वास्त में लिखा गया था कि खातून कहती हैं कि जब मुझे अपने ऑफिस बुलाते थे तो मेरे सामने अपने ऑफिस में वो जैकेट्स और मोज़े उतार लेते थे, तो वो एक अजियत का सबब बनती थी कि ये मुझे इस तरह भी टार्चर करते हैं, हरासा करते हैं। उसको भी इस फैसले में एक मौजूद बहस बनाया गया है, तस्करा किया गया है कि मोज़े उतारना खातून को हिरासा करने के बराबर है। देखें, शायद ये 20 से ज़ायद सफ़हात पर मुश्तमिल है ये फ़ैसला, जिसमें ये कहा गया कि मौज़े के साथ साथ वो खातून ने शिकायत की थी कि जैकेट इसलिए तो उतारते थे कि कट्स या जिस्म की उनकी नुमाइश हो या कुछ है। इसे भी मुख्तलिफ ने ये करार दिया कि ये काबिल बर्दाश्त नहीं है कि मोज़े और कोई जिस्म के दूसरे हिस्से से कपड़े वगैरह उतारे जाएं। ये दफातर में और फिर जो दूसरे कल्चर में हम इसे एक केस तक महदूद नहीं है, पूरे कॉर्पोरेट कल्चर में, दूसरे अदारों में, दूसरे ऑफिस में भी अब ये लिमिट्स तय हो जाएंगी कि ख़वातीन के सामने किस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए। अगर हंसी मजाक भी हो रहा है तो वो उसको कहाँ तक एक्सटेंड किया जा सकता है और कहाँ तक उसकी हदें ख़त्म हो जाती हैं और कहाँ तक वो हरासानी में जा सकता है कि खातून को पसंद नहीं है। ये कुछ लिमिट्स और कुछ स्टैंडर्ड सामने आ गए हैं कि अब दफातर में ऑफिसर गुफ्तगू करते हुए इसको मलहूज़ खातिर रखें, कुछ हदूद में रहें, वरना बड़े ज़ू मायने जुमले कह देना आसानी से बॉडी के बारे में आज तो और बहुत ख़वातीन लग की रही है। मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं कि जॉब करने वाली खातून अगर किसी ऑफिस में, फैक्ट्री में, कहीं भी काम की जगह पर जाती हैं तो उनकी मजबूरी से फ़ायदा उठाया जाता है, उसकी जिस्म के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, उसके तरीक़ाकार, उसके रवैये के बारे में उल्टे सीधे ना सिर्फ रिमार्क्स दिए जाते हैं बल्कि मुख्तलिफ किस्म की ऑफर्स भी की जाती है। तो ये एक फ़ैसला उसके लिए भी एक रोल मॉडल, एक बहुत बड़ा साबित होगा, जो कि जस्टिस रिटायर शाहनवाज तारिक साहब ने मुहसिब सिंध की जानिब से या उसके हैसियत से जो है ये फैसला जारी किया है। अच्छा सर, आगे चलें ज़रा, इस फैसले के आगे होगा क्या? चूँकि बड़ा जुर्माना भी है, ओहदे से भी हटाने का ऑर्डर दिया गया है, जो कि एक पूरे पाकिस्तान में बड़ी खबर बन के सामने आया है। तो इसका फैसला जो है, ये जो मुहसिब का फैसला है, फैसला के खिलाफ जो अपील जाएगी वो गवर्नर सिंध के खिलाफ जाएगी। अब गवर्नर सिंध क्या कानूनी मामलात को या ख़वातीन की मुश्किलात को समझते हैं कि ये मुहसिब का फैसला है उसको मुअत्तल ना कर दें, उसको ख़त्म ना कर दें, बल्कि उस फैसले को बरकरार रखें और एक जो चैम्पियन बनते हैं कि जी वो सबके हकूक़ की पासदार हैं, पासदारी करते हैं, और उस फैसले में एक खातून के हकूक़ की भी पासदारी करते हुए वो इस फैसले को ना सिर्फ मुअत्तल करें बल्कि इस पर अमल दरामद करने के लिए भी वो भी किरदार अदा कर सकते हैं। आपकी क्या राय है? इस सिलसिले में सबसे अहम गुफ्तगू जो हम कर रहे हैं, इसका एक अहम बात यह है कि मुहसिब आला और ये मुख्तलिफ अमूर के जो मुहसिब हैं, कहीं बैंकिंग के हैं, कहीं इंश्योरेंस के हैं, ये ख़वातीन के हरासगी वर्क प्लेस के मुहसिब हैं, इनके लिए अमूमन कभी कभी किसी ब्यूरोक्रेट की भी खदमात हासिल कर ली जाती है कि ग्रेड 22 के या ग्रेड 20 के जो ऑफिसर हों रिटायर्ड, उनको भी हायर किया जाता है। लेकिन शाहनवाज तारिक साहब कि ये खूबी है कि वो ब्यूरोक्रेसी में भी, होम डिपार्टमेंट में भी फ़राइज़ अंजाम देते रहें और फिर उसके बाद वो हाई कोर्ट के भी जज रहे हैं। अब इन्होंने जो तफसीली फैसला दिया है, रीज़न दिए हैं, ग्राउंड दिया है, 20 सफ़हात से ज़्यादा का ये 22 सफ़हात से, जी हाँ। तो अब देखते हैं कि गवर्नर साहब इस बारे में क्या कर सकते हैं। उनका भी कोई सेक्रेटरीट होगा, कोई छोटे मोटे कानूनी माशरत वो मुशावरत के लिए मुशीर होंगे जी। हाँ, कोई मुशीर होंगे, लेकिन अब एक हाई कोर्ट के जज के सामने वो क्या करेंगे, क्या अपील, क्योंकि इससे पहले भी शायद गवर्नर साहब एक ऐसे फैसला जो था खातून के हरासानी का, उसके खिलाफ अपील मंजूर कर चुके हैं। तो उस वक्त भी गवर्नर साहब पर उंगलियां उठी थी। तो अब देखते हैं कि ये इनके पास जो केस जाता है गवर्नर साहब के पास, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि गवर्नर साहब का जो मनसब होता है गवर्नर का या सदर का, अमूमी तौर पर अगर वो किसी सियासी पार्टी से ताल्लुक़ भी रखते हों तो वो रिज़ाइन कर देते हैं। लेकिन हमारे गवर्नर साहब जो सूबा सिंध के गवर्नर हैं वो MKM से ताल्लुक़ रखते हैं, और एक सियासी पार्टी से ताल्लुक़ रखने के बाद ये इल्ज़ाम है कि इलेक्ट्रिक पर कि वो यहाँ के तमाम सियासी कल्चर को मुतमईन करके रखती हैं। एक जमात इस्लामी ने उनके ख़िलाफ़ अवामी कैंपेन चलाई है, वरना तमाम जो भी सियासी पार्टियाँ हैं उनके साथ के इलेक्ट्रिक के मामलात कुछ इस तरीके से चलते हैं
कि वो ज़रा मुतमईन रहते हैं, उनके लोगों को नौकरियाँ मिल जाती हैं, उनको किसी भी तरीके से अकोमोडेट कर लिया जाता है। तो अब पहली मर्तबा गवर्नर साहब के पास जाएगा तो वो कितने इम्पार्शियल हैं कि वो MQM के गवर्नर हैं। और जैसे ही हमने देखा ना कि कल एक मुलजिम तो बरी हुए हैं, इससे पहले के इलेक्ट्रिक के शायद हामिद को कत्ल करने का इल्ज़ाम था, फिर कुछ लोग बरी भी हुए, लेकिन इस तरह था कि MQM उस पर अपना इन्फ्लुएंस चाहती है क्योंकि शहर का एक अहम अदारा है। तो अब उसमें गवर्नर साहब इस सिलसिले में क्या रोल अदा करेंगे, इस अपील को कैसे लेंगे, इसके कानूनी नुकात को कैसे समझेंगे, इसका भी जायज़ा लेना पड़ेगा। अपील उनके पास जाएगी, देखते हैं कि वो इसके बारे में क्या फ़ैसला करते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जो दरख्वास्त गुजार खातून थी उन्होंने जो इल्ज़ामात लगाए या उनको जो उस सारे मामले में सहना पड़ा, बर्दाश्त करना पड़ा, फेस करना पड़ा, उन्होंने सारी जो मौक़िफ़ था अपनी दरख्वास्त के अंदर रखा। अब जो बातें लिखी गई हैं वो कई बातें ऐसी हैं जो कि हम आप तक वो आपके सामने रख ही नहीं सकते। आपकी रिस्पेक्ट और इस लिहाज से कि पब्लिक में इस किस्म की गुफ्तगू नहीं जानी चाहिए, लेकिन इल्ज़ामात बड़े संगीन नोयत के मोना सलवी साहब के ऊपर, उस खातून दरख्वास्त गुजार जो कि पढ़ी लिखी समझदार और दुनिया भर के इदारों में जॉब काम करने वाली खातून समझी जाती हैं और वो रही हैं, उनका बड़ा एक्सपीरियंस है, लेकिन उनको ये सामना करना पड़ा। लेकिन मसला ये है कि अदालत ने या मुहतसिब ने ये उनकी मौक़िफ़ को तस्लीम किया। तस्लीम करने के बाद उन्होंने करार दिया है कि ये खातून के लिए ज़हनी अजियत का सबब बने, ये जो उनके रिमार्क से या उनका जो तरीक़ाकार होता था खातून के साथ, तो ये एक बहुत बड़ा एक फ़ैसला है जिस पर अमल दरामद होता है। तो यकीनन ये पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए एक बहस हिम्मत होगा कि कभी भी कोई भी अगर उनको उनके काम की जगह पर चैलेंज करता है या उनको हिरासत करता है, उनको उनकी हिरासमेंट का सबब बनता है, तो वो अपने हकूक़ के लिए जंग लड़ सकती हैं इस फैसले को बुनियाद बनाकर। जी देखें शायद इसमें सिर्फ एक मुनस अलवी को टारगेट नहीं किया गया था, इसमें 4 मुल्ज़मान के खिलाफ 4 अफसरान को कहा गया था कि वो भी कहते थे कि वो भी सारे चेहरा दिखाओ। हाँ, वो भी के इलेक्ट्रिक के टॉप मैनेजमेंट के लोग हैं। उनके नाम मैं आपको बता सकूँ, अगर मोहम्मद रिजवान डालिया थे, एक रिटायर्ड कर्नल थे असगर साहब, और एक और थे रफ़ी साहब, मतलब इनके HR और मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे। तो उनके खिलाफ भी ज़ाहिर है कि जायज़ा लिया गया कि तो सबूत वहाँ तक नहीं पहुँचे कि जहाँ हरासानी साबित होती कि जी आप उन्हें रोज़ चेहरा दिखा दिया करें, आप वहाँ जाए। मतलब मोने सलवी साहब के ऊपर इल्ज़ामात साबित हुए, बाकी जो अफसरान थे उनके ऊपर इल्ज़ामात साबित नहीं हुए, दूसरों को बरी किया गया। मोने सलवी साहब के ऊपर जुर्म साबित होने के ऊपर उनको ओहदे से हटाने का ऑर्डर दिया गया। तो ये है कि कोई मुख्तिब अपना जहन नहीं बनाकर बैठे थे कि इलेक्ट्रिक को हमें निशाना बनाना है। जिन लोगों के खिलाफ एविडेंस उस मियार तक नहीं पहुँचे, उन्हें लैक ऑफ एविडेंस की वजह से रिहा भी कर, वो बरी भी कर दिया गया, छोड़ भी दिया गया है। और जिनके खिलाफ उन्होंने समझा बादी नज़र में कि इल्ज़ामात साबित होते हैं, उन्होंने सज़ा दिया है कि 25 लाख रुपए जुर्माना दिया जाए, आयद किया गया है। अगर वो 1 माह में अदा ना कर सकें तो उनकी तनख्वाह से भी कटौती की जाए, उनका शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट बिल्कुल प्रॉपर्टी ब्लॉक कर दिया जाए, और उनकी प्रॉपर्टी को भी इसी तरीके से जैसे लैंड रेवेन्यू के ज़रिए किया जाता है कि जब्त कर सकती है गवर्नमेंट, उनको जब्त किया जाए। तो ये सज़ा दी गई है। अब देखते हैं कि इस बारे में वो किस तरीके से, जैसा उनका ट्वीट आ गया है तो उन्होंने कहा कि जहनी तकलीफ़ हुई है और मैं तो वर्क प्लेस पर ख़वातीन के एहतराम का ख्वाहिशमंद हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये कुछ हो। और ये गलत फहमी की बुनियाद पर वो ये समझते हैं कि मैं वज़ू के लिए उतारता था ये जैकेट और मोज़े वगैरह। तो अब देखें वो अपील में जाते हैं, उनका मौक़िफ़ भी सुना जाएगा और अभी भी सुना गया है, लेकिन वहाँ पर किसी दूसरे व्यू से या कोई वो नए एंगल से उनका वकील वहाँ पर पेश करता है, तो उसको भी देखते हैं कि अभी क्या आएगा। लेकिन बुनियादी तौर पर आज ये बड़ा चौंका देने वाला और एक लैंडमार्क जजमेंट है जो ख़वातीन के हक़ूक़ के बारे में पाकिस्तान की तारीख़ में याद रखा जाएगा। चलिए सर भी थैंक यू, क्योंकि वहाँ पर ना जो खातून दरख्वास्त गुजार थी उनके वकील को सुना गया, 5 साल तक केस चलता रहा। 2019 से केस ज़ेर समाअत था। मोने सलवी साहब के वकील को भी सुना गया है। अब मोने सलवी साहब ने इस फैसले पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने करार दिया है कि हम इसके खिलाफ अपील करेंगे और वो चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले और जो इल्ज़ामात हैं उनको उन्होंने दुरुस्त करार नहीं दिया है। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा सर। आपका शुक्रिया, आप देखने वालों का बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।